So these are the questions which recently has been asked, and I was making these videos on this, and I have these more questions here, and I have more questions here, like all students, more questions here. Those are the students those recently got appear in the test. They have shared their feedback, and I got the screenshots. Only reason is I cannot make the videos that sometimes it's very difficult to sit, make video, record it, edit it, and just upload it. What I'm thinking, once we get the good numbers here, we will do it live, all the questions, and we will discuss. So we will have this online video. It will be recorded and we will post on YouTube. Is that idea? Do you like that idea? I hope that make good sense as well. Other than that, it's very tough to do video recording, editing, and blah blah blah. So many things. Yes. अगर आपका कोई शेफ जेआरपी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो निसंकोच, और कोई भी क्वेश्चन है आपका फील फ्री टू आस्क. जो जॉब रेडी में अपीयर हो रहे हैं, मैं एक दो क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ. लेट्स गेट स्टार्टेड. हम इसके ऊपर बात करेंगे तो फिर हम वी विल डिस्कस मोर, राइट? ओके. रिसेंटली आई गॉट वन ऑफ द क्वेश्चन. The question was, how do you assemble the RoboCup? I hope everybody know about RoboCup. अगर सबको पता है तो प्लीज़ यस यस लिख दो कमेंट में, और जितने भी देख रहे हैं हमें प्लीज़ स्टार्ट शेयरिंग इट, क्योंकि आपके एक शेयर से जो यहाँ पे मिसिंग है उनको पता चल सकता है कि हम यहाँ पे लाइव हो चुके हैं, और उनकी भी हेल्प हो सकती है, राइट? सो कृपया करके लाइव और लाइक वाला दोनों पे बटन आपका हाथ उठना नहीं चाहिए. नो. ओके. गिल साहब नो. ओके. राइट. ओके. सो anyone know about RoboCup? Only we have the many people there, but nobody's responding. Okay guys, if nobody's responding, definitely I will shut it off and I'll go for sleep. मैं आपके लिए आया हूँ. अगर आप ही नहीं जवाब दोगे तो फिर मेरे बैठने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है? राइट. सो प्लीज़ रिप्लाई, प्लीज़ कमेंट, स्टार्ट शेयरिंग इट, एंड वी विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस. मेरे पास बहुत मटेरियल है. आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस, सो मेनी थिंग्स, बट ओनली थिंग इज आई डोंट हैव टाइम. बट इफ आई हैव टेकन फ्यू seconds or few minutes, I would say you can get advantages of it. जी. और आप शेयर कर सकते हैं इसको कंटिन्यूसली, तो हमारे पास जो काफ़ी ऑडियंस आ जाएगी, एंड वी विल डिस्कस क्वेश्चंस. ओके. क्वेश्चन के बारे में पूछता हूँ. जो क्वेश्चन रिसेंटली टेस्ट में पूछे गए हैं उनके बारे में पूछूंगा. नो मोर टॉक्स. सत श्री अकाल कौर. सत श्री अकाल जी, की हाल चाल कौर जी? तुसी ठीक हो? यस, आफ्टर लॉन्ग टाइम, बिकॉज आई हैव टू गिव यू वन खुशखबरी टू एवरीबडी. एक खुशखबरी देनी है, और यस काफ़ी सारी चीज़ें हैं मैं यहाँ पे शेयर करूँगा आप सबसे. सो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है सबका, ठीक है? और वेरी गुड, ठीक है. उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे, आप कैसे, आप सब लोग कैसे, पहले तो ये बताओ आप सब लोग ठीक हो? प्लीज़ कमेंट करो कि आप ठीक हो, बढ़िया कर रहे हो सब, आपका जॉब रेडी अच्छा चल रहा है. प्लीज़ कमेंट बिलो. और मैं यू बात करने वाला, मैंने इसकी वीडियो बना रखी है कि, बट आई विल डिस्कस विद यू ऑल. गुड, वेरी गुड. ओके. अभी 2 जने रिप्लाई कर रहे हैं. नो प्रॉब्लम. निकोल जॉइन. हेलो. So the question which recently has been asked in a skill assessment, those were first question was danger zone. Are we familiar with the danger zone? Everyone. If yes, comment. If you know, we will definitely answer those questions. Very good, sir. Pawanjeet. Very nice, Pawanjeet. Thank you so much. Okay. Singh
5 to 60 degree. Absolutely correct. Brilliant job. Second question was, what happens between 5 to 60 degree? Okay, can you type please question fast because I don't have much time. So I want to take as much as question in this session so everybody know. So later on this video I will be uploading on my social media, so you all sorted. So if you comment below faster, definitely we will discuss all the questions. Papa, okay, Papa. Yeah, looks nice. बहुत बढ़िया. Very good. Papa. बहुत बढ़िया. Nice. Good job. जाओ. चेन निकालो. Papa. ये कच्चा पापा. Reject पापा. ये कप. हाँ जी. So, microbacterial growth. Yes. Okay. Kind of. Yes. Okay. इसमें हम बोल सकते हैं. Okay. Very good. 5 से लेके 60 डिग्री के बीच में जो टेम्परेचर होता है वो डेंजर जोन कहते हैं. उसमें क्या होता है, जो बैक्टीरियाज होते हैं दे ग्रो इन ए रैपिड क्वांटिटी. और यहाँ तक तो सबको पता है, बट आप बता सकते हो कि एग में कौन सा बैक्टीरिया डेवलप होता है. असेसर इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं आजकल. अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट कर दो, देन अदरवाइज आई आंसर इट एंड वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, एग में कौन सा बैक्टीरिया होता है? ओके, सैल्मोनेला. वेरी गुड. ओके, एग एंड चिकन में सैल्मोनेला होता है. ई कोली होता है. ई कोली होता है डेयरी में. और रेड मीट में 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं. एक होता है लिस्टीरिया और सेकंड वन होता है आई वुड से कैम्पिलोबैक्टर. ठीक है, ये 2 बैक्टीरियाज जो होते हैं रेड मीट में होते हैं, और एग में चिकन में सेम बैक्टीरिया होता है, और डेयरी में होता है ई कोली. और अगर कोई फूड नीचे गिर जाता है तो उसको हम नोरा वायरस भी बोलते हैं, या कैम्पिलोबैक्टर में भी काउंट होता है. अगर कोई फूड नीचे गिर जाए किचन में तो उसके ऊपर कौन से बैक्टीरिया होते हैं. तो दिस वाज द पार्ट फॉर आई वुड से डेंजर जोन. ठीक है, सबको समझ आ गया इसके बारे में? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, सबको समझ आ रहा है? प्लीज़ हैंड्स अप ही दे दो अगर आपने कुछ कमेंट नहीं करना तो प्लीज़. लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन. जी, ओके, वेरी गुड, नाइस. लेट्स मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन कि फ्रीजर का टेम्परेचर क्या होता है. सबको पता है बट आप बता सकते हो. व्हाट इज फ्रीजर टेम्परेचर? -18 to -24. Yes, it can be -18 to 22, or it can be yes -18 to above. Sorry, give me a sec. Okay, yes, -18 to -24 is too high, but you can say -18 or above, or highest it can go 22. That you can say. Very good. We are moving to the next question. That is chiller temperature or cooling down temperature. What is it? यस, कंटिन्यूसली शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, ताकि जुड़ते जाएं. जितनी ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतने जल्दी आंसर आएंगे, उतने जल्दी आंसर आएंगे तो उतनी जल्दी सेशन कवर होगा. ठीक है, इस सेशन के मैं चार्ज करता हूँ बट जो मैं आपको फ्री करवा रहा हूँ. ठीक है, सो मेक श्योर करो, यूटिलाइज दिस एंड कीप शेयरिंग इट, कीप लाइकिंग इट, सो मेनी पीपल कैन जॉइन अस, दैट एवरीबडी गेट टू नो दैट व्हाट इज हैपनिंग इन द JRP टेस्ट. वेरी गुड. सो चिलर टेम्परेचर या फिर कूलिंग डाउन टेम्परेचर होता है कि कोई भी आइटम, एनी आइटम विच इज हीटेड 60 डिग्री और 65 डिग्री
in first 2 hour it should be come down to 21 degree, and further 4 hours it has to be between 0 to 5 degree. That is the chiller temperature or the cooling down temperature. I hope that helps you. So अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट कर दें, फिर मैं उसको कवर कर लूँगा किसी के भी बीच में जो मेरे को टाइम मिलेगा. लाइक वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज व्हाट आर द प्रिसीजन कट्स. क्या होते हैं प्रिसीजन कट्स? अगर आप आंसर जल्दी जल्दी करोगे तो मज़ा आएगा. फिर मेरे को लग रहा है कि मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ. आई गेट फीलिंग दैट. या आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए. टैप से, शेयर से, टैप से, शेयर से और कमेंट से, तीनों चीज़ें. ओके, व्हाट आर द प्रिसीजन कट्स? ओके, अगर आपको नहीं भी पता तो नो लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, प्रिसीजन कट्स जो होते हैं मोस्टली वेजिटेबल्स में होते हैं. प्रिसीजन कट्स मोस्टली, ठीक है, मोस्टली जो प्रिसीजन कट्स होते हैं वो वेजिटेबल्स में होते हैं. तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, वी विल डिस्कस मोर डीपली लेटर ऑन. मैंने वीडियो में डाल रखा है, सॉरी माय बैड, मैंने वीडियो में भी डाल रखा है. अगर आपको उसका आंसर नहीं पता तो आप जाके वीडियो भी देख सकते हो जो यूट्यूब में मैंने डाल रखी है, लिंक इन बायो. वेरी गुड. हाँ, अभी आप सही बोल रहे हो, दैट्स नाइस. द ओके, dicing, chopping, slicing, julienne, brunoise, chiffonade, pacing, button. So these all are the different precision cuts which we use in which we use for vegetables basically. Yes, slicing is also one of them. Next one is what is poaching temperature? Shally joined. Okay, those are joining जो हमें जुड़ रहे हैं हमारे साथ. I really appreciate that and I really thank you so much you're joining my live. But only thing is, if you can continuously share and like this one, so this information can be reached to the many other students those are in need. Okay, poaching temperature I have asked. Please answer correctly or wisely. What is poaching temperature? Yes, please. ओके, पोचिंग टेम्परेचर सर सेंट्रल कोस्ट टेस्ट होया मेरा लास्ट वीक. वेरी गुड. जसकरण सिंह चहल. ओके, किद्दां गया ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ? आई होप ਵਧੀਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ. ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੈਸਰ कौन सी वो भी दस दो. 85 to 90. ओके, पोचिंग का टेम्परेचर जो होता है बिटवीन 70 to 80 डिग्री होता है, ठीक है. याद रखें प्लीज़, भूल मत जाएं कि जो पोचिंग का टेम्परेचर होता है बिटवीन 70 to 80 और 85 हार्डेस्ट. यस, दैट यू कैन से. ठीक है, समझ आ गया? ओके, वेरी गुड. ਅਸੈਸਰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ. ਠੀਕ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਸਿਮਰਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਿਮਰਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ? आप गलत ही क्यों बता रहे हो सारी? सिमरिंग टेम्परेचर ऐसे होता है? आई डोंट थिंक सो. सिमरिंग का मतलब क्या होता है आपको पता है? वन 180 to 190 गूगल से देख के तो नहीं बता रहे आप? अक्षय सैनी सिंह. लेस देन 100 बॉइलिंग इज सिमरिंग. ओके, बॉइलिंग इज नॉट सिमरिंग. काइंड ऑफ बॉइलिंग इज बॉइलिंग which is above which is 100 degree, right? So 100 degree is boiling temperature. So simmering
it start from 65 simmering. Like if you do sous vide, so sous vide start from 65, right? So sous vide क्या होता है ये भी आप सर्च कर लो, तो ये भी क्वेश्चन है इसमें, वो हम बाद में गत करेंगे. तो 65 से लेके इट कैन गो अप टू 95 के बीच में टेम्परेचर सिमरिंग हो सकता है. बट अगर आपको एक आंसर देना हो तो यू वुड से बिटवीन 90 to 95 जो टेम्परेचर होता है या 92 टेम्परेचर होता है उसको हम सिमरिंग कहते हैं, ये आप बोल सकते हो. यस ठीक है. वेरी गुड. ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਡੈਰਨ ਸਮਿਥ ਸੀ ਜੀ. ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਆਵਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਹਾਫ an hour. Okay, very good. Usually assessors take 1.5 hour, they take 2 hours, they take 3 hours, they take 10 minutes, they take 30 minutes. Depends assessor to assessor what actually they want to do it or what actually they want to see it. So it's totally assessor call. We cannot do anything in that, right? Okay. Very good. Next question is, what is sous vide method or sous vide method? अगर आपको पता है sous vide method या फिर इसको sous vide भी बोलते हैं, sous vide भी बोलते हैं. sous vide स्लैंग में बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन में. और सत श्री अकाल जपनूर जी, सत श्री अकाल, की हाल चाल, ठीक हो तुसी? एंड वी कॉल इट sous vide. So sous vide is modern method and techniques which we use for to retain the quality of the meat and it's all the minerals, I would say. Yes. हेलो जी, हेलो. ओके, जिन्ने जाने भी देख रहे ने वीडियोस, जिन्ने जाने लाइव देख रहे ने, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ YouTube ਦਾ ਲਿੰਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ. I have posted all my videos on YouTube. The YouTube channel name is Chef Somjit Singh. You can go subscribe that and you can watch every new video there. Do not forget the bell icon to press it so you will get all the latest update. I'm preparing some new stuff which can help you to pass 100% your JRP. तो जो नया स्टफ मैं तैयार कर रहा हूँ वो आपको 100% पास करने में हेल्प करेगा. तो मेक श्योर करो आप मिस नहीं करोगे. जो भी आपके मित्र, बेली, यार, भाई, बहन जो देख रहे हैं, या जॉब रेडी कर रहे हैं या फिर कुकरी कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनको शेयर कर दो. अभी से वो अपने आप को प्रिपेयर करें. बाय द टाइम दे डू नॉट हैव टू स्पेंड एनी सिंगल पैनी, राइट? सो कीप दैट इन माइंड. यू कैन गो एंड चेक दैट लिंक. और वहाँ पे एक PDF है जो कि ऑलरेडी उसका लिंक मैंने अपनी बायो में लगा रखा है, आप जाके देख सकते हो. ओके, फिर उन्हें क्या मैं कम कर देनू वेखांगा जी. नान एंड करी दोवें पासे. वेरी गुड. फूड स्लो कुकड इन वाटर हीटेड एंड द constant temperature and he said I'm waiting until you guys got some order. Okay, nice. That's nice. Okay. Basically yes, assessor they usually stay there, ask you and they observe you, so it's their job to check you are a right candidate and you know everything about chef. Very good. But thanks to you, I prepare all question from your video. Look, the guy is there, live example is there. So really appreciate, brother. You are here, you are telling me that you have watched the videos and you have done it great. Really, I'm wishing you best of luck for your future. I hope you get positive result and just get Australian PR ASAP. Thank you. Very good. Okay, sous vide is basically a modern cooking method which is basically food is being cooked in a simmering water and the food is already vacuumed in a vacuum bag and cooked in the water. So hot water, I would say, not any other alternative, only the hot water, and the food is already in the vacuum bag. That method we call it sous vide. The sous vide actually is a machine. If you search SOUSVIDE, so it's actually a modern heating machine, like which heats water. It has display on the top, so when you set the temperature, so water gets simmer and you put your vacuum bag items in that water and it will get cooked. So it is best quality. So quality meat or the expensive meat usually we cook on this method. The reason is they do not want to destroy the quality of the meat. So I hope that helps. So it should be clear by now. Okay, are we understanding what we are discussing? Everybody's there. Can you please type yes, yes, yes and start sharing it and liking it? So I would say yes, it is working for everybody and everybody's know what we are discussing here.
तो सबको पता चल रहा है हम क्या बातें कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं और उनके क्या आंसर मिल रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो यस प्लीज़ लिख दें, ताकि मुझे भी हौसला मिल जाए कि हमारे साथ 4 5 10 लोग जुड़ गए हैं एंड दे आर लिसनिंग मी। ठीक है, सो ये आपको 100% हेल्प करेगा। ठीक है, आप आज नहीं करोगे तो पर आपको करना पड़ेगा, बट लेटर ऑन यू कैन थैंक्स मी, बट आज सुन लो, फिर बाद में आप थैंक्स कर देना $1 मिलियन दे के मेरे को कि हाँ सर आपकी वीडियोस बहुत अच्छी थी। ठीक है, जस्ट किडिंग, बट यस इट विल 100% विल हेल्प यू आउट टू पास योर GRP। मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों क्योंकि ये पिछले जो 1000 प्लस कैंडिडेट जो पास करके गए हैं रिजल्ट, उनके बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ। वेरी गुड, ओके लेट्स बैक टू द टॉपिक। What would you do if there is a fire in kitchen? आप क्या करोगे अगर आपके किचन में आग लग जाए? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। असेसर पूछता है कि क्या होगा अगर आपके किचन में आग लग जाए, तो आप क्या करोगे? तो ये दे वांट चेक योर मेंटल एबिलिटी, दैट हाउ फास्ट हाउ क्विक यू थिंक और व्हाट अल्टरनेटिव और व्हाट एक्शन डू यू टेक। तो आप क्या बोलोगे? कोई आइडिया है? Anyone has any idea what we are talking or what is question? ओके, अगर आपको आंसर नहीं भी आता, देखो डरने वाली बात नहीं है। मैं कौन सा पैसे मांग रहा हूँ यहाँ पे? ठीक है, पैसे वाली तो कोई सीन ही नहीं ना। या आपका गलत आंसर हो गया तो आप कौन बनेगा करोड़पति में बाहर निकल जाओगे, कोई कंपटीशन नहीं है। इससे सिंपल है, अगर आपको आता है तो यस लिखो, अगर आता है तो उसका आंसर लिखो, अगर नहीं आता तो नो लिख दो। आई डोंट नो, सो दैट विल क्लियर मी कि वो जो हमारा टाइम है ना, जो मैं आपको देखता रहता हूँ कि आप टाइप करोगे या लिखोगे, फिर हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं किसी और में। ठीक है, ओके। आकाश सैनी सर, वी हैव फायर एक्सटेंशनर एंड यूज इट ऑन कॉल इमरजेंसी सर्विसेज एंड ऑलवेज गो फॉर एग्जिट। यूज फायर एक्सटेंशनर सर, मैं मैनेजर को इन्फॉर्म करूँगा। वेरी गुड, यो आपका भी सही है आकाश। एंड फायर ब्लैंकेट यूज़ करेंगे, वेरी गुड, दैट्स राइट आंसर। बट इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि in case in fire in kitchen, I will evacuate the kitchen. That's the first priority. I'll make sure everybody is safe and evacuated, and I will inform supervisor ASAP. If possible, I will shut down the supply. और उसके बाद में फायर एक्सटेंशनर हो गया या फिर फायर ब्लैंकेट हो गया, वो यूज़ करूँगा। अगर किसी को चोट लग गई है तो उसको फर्स्ट एड भी दूंगा। अगर कोई सीरियस है तो आई विल कॉल द एम्बुलेंस। ये सिंपल आंसर है। उसके बाद में आपने और कुछ जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हो। ठीक है, तो कीप शेयरिंग इट, बिकॉज मेरे को बोलना पड़ता है कि जितने ज़्यादा लोग सुनेंगे उतनी ज़्यादा हेल्प होगी, राइट? तो यही है, सो स्टार्ट शेयरिंग इट। कोई कन्फ्यूज़न जो हमने अभी तक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, एनी वन हैज़ एनी कन्फ्यूज़न और एनी क्वेश्चन विद दैट? क्योंकि मैं सेशन भी ऐसे करवाता हूँ ना, तो मेरे को थोड़ी आदत बनी हुई है ये वाली। ओके सर, ये क्वेश्चन प्लीज़। ओके, एक यहाँ पे बात बताता हूँ कि जितने लोग मेरे से पूछते हैं कि सैसर कहते हैं, मेरे को एक दिन में 50 मैसेज ऐसे होते हैं कि ये सैसर कैसे है। हालांकि मैंने अभी तक नंबर नहीं अपना अपलोड किया, बट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ये सैसर कैसा है। बट मैं आपको बताता हूँ कि ये सैसर जितने भी हैं बहुत अच्छे हैं। थोड़े ट्रिकी होते हैं बट अच्छे होते हैं। बट आपको क्या करना है कि आपको तैयारी इस हिसाब से करनी है कि आगे कोई भी सैसर आ जाए हम नहीं छोड़ेंगे, हम तो पास करके हटेंगे। मेरा ये एटीट्यूड है, तो आपका भी यही होना चाहिए। और मैं कॉन्फिडेंटली आपको ये कह सकता हूँ कि अगर आप सारी वीडियोस को देख लेते हो, उनके नोट्स बना लेते हो, कोई भी माइकल लाल ज़्यादा हो गया, बट मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता अगर आप उनको अच्छी तरह से पढ़ लेते हो और लिख लेते हो। तो ये मतलब 100% रामबाण इलाज है अगर आप इसको फॉलो करोगे तो। बट अगर नहीं कर रहे तो दैट इज़ योर प्रॉब्लम। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। How would you handle the busy kitchen? ओके, बीच में आप क्वेश्चन पूछ रहे हो क्योंकि आपको उसी पे नहीं आता होगा आंसर। बट ये मैंने सारी वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई हैं हर वीडियो में। बट यहाँ पे मैं जो स्पेसिफिकली एक रिसेंट टेस्ट की डिस्कस कर रहा हूँ, तो आई डू नॉट वांट टू गो आउट ऑफ दिस टॉपिक। इफ़ यू डू नॉट माइंड, प्लीज़ या तो आप वीडियो में देख लो तो या फिर लास्ट तक वेट करो, मैं उसका आंसर जरूर करूँगा। आई होप यू डोंट माइंड इट। ठीक है, बट ये वाले जो रिसेंट टेस्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, हो सकता है असेसर वही हो और आपके भी वही क्वेश्चन पूछे जाएं।
ठीक है. एंड हाउ इज़ द असेसर. असेसर सब बहुत अच्छे होते हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे असेसर होते हैं, बट ओनली थिंग इज़ you have to be confident and you should have all the knowledge which you have ticked on your SPR और EBR report. फिर से बोल रहा हूँ एक बार, अगर आप चाहते हो कि मैंने टेस्ट JRP पास करना है तो असेसर के बारे में पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे कोई भी असेसर हो, चाहे जितना मर्जी स्ट्रिक्ट असेसर हो. बट अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी करते हो वीडियोस देखकर, ओके, अगर आप वीडियो से अच्छी तरह से तैयारी करते हो, अगर आपका टेस्ट पास नहीं होता तो आपके नेक्स्ट टेस्ट की जो फीस है वो मैं पे करूँगा. फिर तो आपको यकीन आ जाएगा, आई कैन ट्रस्ट दैट मच माई वीडियोज़. ठीक है, बाकी आपकी मर्जी. डोंट पैनिक, ऑलवेज गो विद द टीम एंड ऑलवेज कीप काम डाउन एंड डू ऑर्डर वन बाय वन. ठीक है. आप बिजी टाइम में किचन को कैसे हैंडल करते हो, या फिर आप बिजी किचन को कैसे हैंडल करते हो, ये क्वेश्चन है. क्या आंसर करोगे? ओके ओके, ये भी बात क्लियर कर देता हूँ. अगर सब कोई कहता है कि मैं फ्रायर पे करता हूँ, तंदूर पे करता हूँ, लार्डर पे करता हूँ, सी फूड पे करता हूँ, पेस्ट्री पे करता हूँ, डिज़र्ट पे करता हूँ एंड फ्रायर पे करता हूँ, तो ऐसा मत सोचो कि क्वेश्चन बदल जाएंगे. क्वेश्चन नहीं बदलेंगे, क्वेश्चन सेम रहेंगे. सिर्फ ये होगा कि ओवरऑल आपकी जो मेन्यू है उसके बेस पे ही क्वेश्चन होंगे, चाहे आप सैलड में हो, चाहे किचन में हो, चाहे फ्रायर पे हो, चाहे तंदूर पे हो, कहीं पे भी हो, बट क्वेश्चंस वही रहेंगे. ओवरऑल आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके आउटलेट की और आपकी मेन्यू के बारे में, स्पेशली कि आपकी मेन्यू में हो क्या रहा है और कौन कौन सी चीज़ें हैं. अगर ये चीज़ें आप नहीं करते देन देयर वुड बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि आप एक रेस्टोरेंट में काम करते हो जहाँ पे लार्डर भी, सी फूड भी, पेस्ट्री भी और फ्रायर भी होता है. तो इट्स नॉट अबाउट कि वन सेक्शन ही आप देखोगे, आपको ओवरऑल नॉलेज होनी चाहिए काम, चाहे आप कौन से भी सेक्शन में करो. तो ऐसे मत सोचो कि क्वेश्चन अलग होंगे सैलड सेक्शन के, किचन के. नहीं, क्वेश्चन सेम होंगे, बट आपको ओवरऑल इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है. ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मुझसे कि मैं सैलड में हूँ, फ्रायर में हूँ, पैन पे हूँ, करीज पे हूँ. डजेंट मैटर, आपको पूरे रेस्टोरेंट की जो मेन्यू है उसकी नॉलेज होनी चाहिए. भाई, व्हाट इज़ द मॉक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी? कौन बताता है ये वाले क्वेश्चंस बेसिकली आपको? मैंने पहली बार सुना है आपसे, बट मेरे को आंसर पता है इसका, बट आपसे पहली बार सुना है मैंने. और ऐसे क्वेश्चन नहीं होते. आई डोंट नो आपको कौन सी बुक में ये वाले क्वेश्चन दिए गए हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं. ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछते वाले आज तक. ओवर 100,000, आई थिंक 1000 से ऊपर होंगी एप्लीकेशन जो स्टूडेंट ने JRP कर लिया है. किसी एक को भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो उनको पता नहीं था या आउट ऑफ बुक आया हो. ओके, स्प्लिट द टास्क एंड ट्राई टू सर्व ऑर्डर विच कम्स फर्स्ट. थैंक यू भाई. ओके, बेसिकली आपका जो आंसर था कि बिजी पीरियड में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो होता है कि हम बोल सकते हैं कि आई हैव बीन वर्किंग दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर दैट मच पीरियड, और I know ins and outs, and when my restaurant get busy, and I always prepare for that, and I always have backup in my hand. Apart from that, you can say is uh, clear communication with the staff, back of house team, front of house team. Make sure everybody is well equipped in their sections. If anything is sold out, so make sure there is a clear communication to the back of house team and front of house team. And if it gets busy all of a sudden in the front of house, so make sure that all customer should be seated and they should be served according to the first in first out. And in case if any customer is waiting for the long, there should be the clear instruction to the front of house team that they should be given some entrees, some drinks or some beverage to occupy them until their food is being cooked or it's being served. And there should be anything is sold out that should be informed to the front of house team so they can convey the message to the customers, or they can replicate, or they can choose some any alternative. If in case any busy section, so
they are running behind from the service, I would highly help them out. I will make sure that my service is on time, and I'll go on the section and will help you. And I will try to focus smooth and easygoing service for the my restaurant. That you can answer. यस, अगर आपने कोई पीडीएफ भी लेना है तो वो मैंने सारे क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे वो मैंने बना रखी है. इफ़ यू वांट द पीडीएफ सेशन पैकेज लेना है, पैकेज ले सकते हो. सीडीएफ लेना है, पीडीएफ ले सकते हो. कंसल्टेशन करना है 30 मिनट्स 20 मिनट्स, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. कोई भी आपके डाउट्स हैं वो डिस्कस करने हैं तो स्मॉल चार्जेस हैं, आप मेरे से कभी भी रब्ता कर सकते हो, बात कर सकते हो. विल हैप्पी टू असिस्ट यू कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. ओके, सो दे कैन आस्क लाइक हाउ यू मेक. यस, दे कैन आस्क आप कैसे बनाते हो और इसके क्या इंग्रेडिएंट हैं और इसकी रेसिपी क्या है. ओके, सो आप मैसेज कर लो मेरे को यहीं पे. आप टिकटॉक पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, फेसबुक पे कहीं पे भी मैसेज कर सकते हो. बट आई एम थिंकिंग टू पुट माई नंबर देयर. बट मेरे को डर ये है कि कॉल्स बहुत आती हैं, हम नंबर देखते हैं और डायरेक्टली कॉल करते हैं तो वो मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल लगता है. बट एनीवे, आई विल वर्क आउट विद दिस. हो सकता है तो आप व्हाट्सएप में मेरे को मैसेज कर सकते हो. कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो मैं उस पर आपको हेल्प कर दूंगा, ठीक है. बट बट क्या होता है कि आई डोंट हैव टाइम टू आंसर दोज कॉल्स. समटाइम मैं भी बिजी होता हूँ. सो मेरा ये रहता है कि जब भी मेरे पास टाइम होता है तो मैं उनका आंसर करता हूँ, उनको कॉल बैक करता हूँ. बट कई बार नहीं होता. बट अगर आपको नंबर मिल गया तो डू नॉट कॉल डायरेक्टली. आई वुड हाईली रिक्वेस्ट यू, कोशिश करें कि आप हमेशा मेरे साथ मैसेज पे बात करें. दैट विल बी वेरी वेरी अप्रोप्रिएट. Okay, yes, very good. Okay, let's go into the next question. Okay, भाई साहब का क्वेश्चन आया था, पहले मैं उसके बारे में आपको बता दूं. अगर वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन पूछा गया था उनके फ्रेंड को. नवदीप सिंह पूछ रहे हैं व्हाट इज़ मॉक्युलर गैस्ट्रोनॉमी. सो एक्चुअली दिस वन क्या होता है कि जो मॉक्युलर गैस्ट्रोनॉमी होती है, ये वाला जो मॉडर्न टेक्निक्स एंड ट्रेंड्स होते हैं, इसकी सिंपल भाषा में बताऊंगा कि जो मॉडर्न टेक्निक्स एंड ट्रेंड्स होते हैं जो डिफरेंट कुजीन में यूज़ किए जाते हैं, किसी भी कुजीन में हो सकता है, नॉट पर्टिकुलर कोई भी कुजीन में हो सकता है, जहाँ पे बायोलॉजिकल एंड केमिकली जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं. जैसे आपने इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि फूड की गार्निश करने के लिए और फूड को अच्छा दिखने के लिए मॉक्युलर गैस्ट्रोनॉमी यूज़ किया जाता है आजकल डिफरेंट कुजीन में. इसके एग्जांपल दूंगा कि अगर आपने सुना होगा कि अगर आप चॉकलेट बिस्कुट खाते हो तो आपके मुंह से धुआं निकलता है, तो दैट इज़ काइंड ऑफ नाइट्रोजन लिक्विड. जब आप एक बिस्किट को नाइट्रोजन लिक्विड में सोक करते हो, जब आप उसको खाते हो तो आपका जो ब्रेथ है इट टर्न्स टू बी कोल्ड, क्योंकि नाइट्रोजन जो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है जो कि फूड में यूज़ करके उसमें धुआं निकलता है. लगा आपने सुना होगा कि जो टेबल पे लेके जाते हैं तो दे पोर समथिंग ऑन टॉप ऑफ द फूड एंड उसमें से धुआं निकलता है या फॉग निकलती है. तो वो चीज़ क्या होती है, वो नाइट्रोजन गैस होती है. तो उसी के जो मॉडर्न टेक्निक्स में केमिकल्स और जो नए चीज़ें तरह की जो साइंस यूज़ की जाती है उसको हम मॉक्युलर गैस्ट्रोनॉमी कहते हैं. आई होप दैट हेल्प्स. तो वेरी रेयर है जो स्किल असेसमेंट कर रहा हो उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर जो बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में काम कर रहा हो उसके लिए ये क्वेश्चन हो सकते हैं. ओके, आई होप दैट हेल्प्स. भाई गवर्नमेंट रिजल्ट टुडे पास, वेरी गुड. चलो शुक्रिया. ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ. ਐਂਡ कदों कितने चिर बाद आया रिजल्ट. सर एलर्जीज की टाइप के कितने होंगे? 12 टाइप के. जैसे आप विक्टोरिया में रहते हैं तो 12 हैं, न्यू साउथ वेल्स में भी इतनी हैं. अगर आप बेस्ट चेक करना चाहते हो तो उनकी वेबसाइट पे जाओ और वेबसाइट पे जाके चेक करो कि कौन कौन से उनकी होम ऑफ जो उनकी मेडिकल वाली वेबसाइट है वहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन से जो लेटेस्ट एलर्जन हैं वहाँ पे मेंशन किए जाते हैं. तो आप वैसे चेक कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ वुड यू ट्रेन न्यू स्टाफ. आप नए स्टाफ को कैसे ट्रेन करते हो?
ओके, जितने लोग भी देख रहे हैं उनको एक फिर से बता रहा हूँ कि आप रेगुलर शेयर करते रहो लाइव को, ताकि जो लोग हमें नहीं देख पा रहे वो देख लें। एक तो ये रीज़न है। दूसरा, जैसे आप जुड़े हो तो कई लोग जॉब फिनिश कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि मैं लाइव हूँ, तो उनके तक ये मैसेज पहुँच जाए। और दूसरा, जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा की हेल्प होगी, ठीक है। सो मेक श्योर आप क्या बोलते हैं, शेयर करते रहो कंटिन्यूसली। और जो लोग देख रहे हैं इस अकाउंट को भी फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी अपडेट्स आने वाली हैं। और जिन्होंने यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जाके सब्सक्राइब कर लें, बायो में लिंक पड़ा है। और जाके अपना जो भी आपने तैयारी करनी है आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू, नो प्रॉब्लम। सुबिन हैरी, जस्ट इंटरव्यू सी नॉर्थ कोट विच सारा गॉट आफ्टर टू वी, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, बड़ी कॉन्ग्रेचुलेशन। तैयारी की सी तुसीं, ये भी दस दो। जैसिका, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जैसिका जी, की हाल चाल, तुसीं ठीक हो? बिजी किचन वाला क्वेश्चन भी क्लीयर कर दो। बिजी क्वेश्चन ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲ ਇਕਵਿਪਡ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੈਕ ਆਫ ਹਾਊਸ ਟੀਮ, ਫਰੰਟ ਆਫ ਹਾਊਸ ਟੀਮ, ਐਂਡ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ immediately inform if anything is sold out or anybody is waiting for their means. First in first serve, there should be implemented. Or if anybody is busy, you have to go and help in their session to make it your service smooth and simple, that you can answer. ਓਕੇ, ਜੈਸਿਕਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਬਸ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟ ਭੇਜੂਗਾ, $1 ਮਿਲੀਅਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਹੁਣ PR ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ। ਓਕੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, no problem. Thank you, Jessica. Thank you so much for sharing your feedback. Next question was, how do you train new staff? Okay. Okay, अच्छा, तैयारी आपा की, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं हुआ। ओके, सारा इज़ वेरी गुड असेसर। जे किसी को नहीं पता, सारा पिकट इज़ वेरी वेरी नाइस असेसर, शी इज़ रियली गुड। और तुहाडे स्किल असैसमेंट के भी टैसट लेंदे आ, तो तुहाडे JRP के भी टैसट लेंदे आ। सो अगर वो आ गई तो मेक श्योर करो, तैयारी वधिया करके जाओ, तुसीं पास हो जाओगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। नए स्टाफ को कैसे ट्रेन करते हो? तो सबसे पहले आप बोल सकते हो कि आप उनको ट्रेनिंग देते हो, आप उनको ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर के बारे में बताते हो, उनको मेन्यू के बारे में बताते हो, उनको टास्क के बारे में बताते हो, कुजीन के बारे में बताते हो, इक्विपमेंट की जानकारी देते हो, इंडक्शन देते हो, नए स्टाफ के साथ इंट्रोड्यूस करते हो, 1 by 1 प्लेसेस दिखाते हो कि क्या हमारा कैसे चलता है और क्या हमारे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं, कैसे हम फॉलो करते हैं और हमारा स्टैंडर्डाइज क्या है। तो ये सब चीज़ उनको बताते हैं। फिर छोटे छोटे टास्क उनको एलोकेट करते हैं एंड देन वी मॉनिटर देम। अगर उनको कहीं पे भी हेल्प की ज़रूरत होती है तो हम उनको हेल्प भी करते हैं कि यहाँ पे आप गलत कर रहे हो, तो दैट इज़ नॉट अ राइट वे। तो फिर उनको सही रास्ता भी दिखाते हैं कि ये वाला राइट प्रोसीजर है। बाय डूइंग दिस टैक्टिक्स वी ट्रेन न्यू स्टाफ, ठीक है। तो आप शेयर करते रहो प्लीज़, सो यू विल हैव मोर नॉलेज what we are discussing now. Okay, next question was how to assemble RoboCoop machine. जो लोग वेस्टर्न फूड में कर रहे हैं, अगर उनको नहीं पता कि RoboCoop क्या होता है तो ये बहुत बुरी बात है। आपको अपने रेस्टोरेंट के इक्विपमेंट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कैसे ऑन होते हैं, कैसे ऑफ होते हैं, कैसे टेम्परेचर सेट होता है, कैसे बंद होते हैं, कैसे क्लीन होते हैं, कैसे असेंबल होते हैं, कैसे डिसमेंटल होते हैं। अगर आपको उनके बारे में जानकारी नहीं है तो आपके लिए ये बहुत दुखदायक चीज़ हो सकती है जब आप टेस्ट के लिए जाओगे, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो हाउ टू ऑपरेट दोज इक्विपमेंट्स, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी अ टफ कॉल फॉर यू, राइट। हाउ टू क्लीन फ्रायर, how do you clean fryer, how to clean fryer, very basic, very simple. So make sure you should know how to clean fryer. And the next one is, how would you clean oil spills on the floor? This is scenario based question. If anything falls on the floor, how will you clean it? So you will stay, would put the signboard on top and inform everybody and make sure nobody get hurt. And I will clean with the paper towel or the disposable papers, and I will put salt on top for the time being to it should not be get slippery. I will not mop it. अगर आप
If you mop it, then it will be a slippery surface 100%. So I will put salt in, so it will absorb and there will be no surface slippery. That you can say. And how do you maintain stock level? That is your restaurant things. How do you order? How do you receive? How do you manage your stock? So you should know your answer. And how do you control wastage? Very simple question, easy going according to your restaurant. How do you utilize your stock and how do you manage your stock? How do you save them? This is all your knowledge and you can answer according to your knowledge. Okay, right. So what do you want answer? मैंने इक्विपमेंट के बारे में बताया, तो क्या आंसर चाहिए आपको इसमें? मैंने क्वेश्चन नहीं, मैंने आपको बताया था कि इक्विपमेंट के बारे में क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में बताया था आपको. यस, वेरी गुड. उसके बाद में हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ डू यू कंट्रोल स्टॉक. ये वही सेम क्वेश्चन आ गया. हाउ डू यू रिसीव डिलीवरी. अगर आपने डिलीवरी के बारे में नहीं सुना अभी तक, आपको नहीं पता, आप फ्रायर कैसे क्लीन करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके रेस्टोरेंट में आप फ्रायर को कैसे क्लीन करते हो. और उसके बाद में था हाउ डू यू रिसीव डिलीवरी. आप डिलीवरी कैसे रिसीव करते हो, तो इसकी तो मैंने बहुत वीडियो डाल रखी हैं. अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो जाके देखो, अपने आप को एजुकेट करो, लर्न मोर थिंग्स, न्यू थिंग्स. ठीक है. एंड क्योंकि आपने तो ऑस्ट्रेलिया में स्टडी की है, तो दिस इज़ आर द बेसिक थिंग्स जो आप कॉलेज में या ड्यूरिंग योर स्कूल यू यूज टू डू इट, राइट. अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन डेफिनेटली गेट इन टच विद मी. और फिर उसके बाद में जो लास्ट क्वेश्चन उनसे पूछा गया, बेसिक नॉलेज भी क्वेश्चन थे उनसे कि आप ऑस्ट्रेलिया कब आए, आपने कहाँ से स्टडी की और आपने कौन कौन सी कॉलेजेस में स्टडी की, आपका किचन कहाँ पे था, आपका ट्रेनर कौन था, और आपके रेस्टोरेंट में पहले कहाँ आपने काम किया, बाद में कहाँ पे किया. दीज आर द क्वेश्चन दे कैन आस्क यू. लास्ट क्वेश्चन था कि हाउ डू यू कम्युनिकेट विद द स्टाफ इन ए बिजी किचन. बिजी किचन में आप स्टाफ के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हो, तो ये क्वेश्चन उनसे पूछा गया. तो आप बता सकते हो कि जो भी जैसे भी आप करते हो, राइट, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप इस चीज़ का आंसर दे सकते हो जी. सो दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस इन वन टेस्ट दे आस्क्ड. बहुत सारे हैं, मतलब ये एक रिटन टेस्ट हुआ, मेरे पास काफ़ी मटेरियल है, बट आई होप कि मैं अभी रेगुलर आपके साथ लाइव आता जाऊं. ओके, लाइव आने का सीन क्या है कि किसी को लगता है कि मैं लाइव आके तैयारी करवा सकता हूँ. येस आई कैन डू, बट यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है कि एक तो मेरे पास टाइम नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मैं इंडिया जा रहा हूँ. आई एम फ्लाइंग टू इंडिया. सो ओनली रीज़न इज़, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए इंडिया में, पता नहीं क्योंकि वहाँ पे 5.5 का डिफरेंस रहता है. सो मेरे को उसके साथ थोड़ा करना पड़ेगा क्लैब. बट एनीवे, वेन एवर आई हैव टाइम बैक होम, जब मैं इंडिया में हूँ, आई विल डेफिनेटली कम लाइव हियर. बट फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप यूट्यूब पे जाके कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे, जो भी आप देख रहे हो, जो आपका कंसर्न है. नहीं तो आप सोशल मीडिया पे मेरे को गेट इन टच कर सकते हो थ्रू व्हाट्सएप. व्हाट्सएप का लिंक मैं यहाँ पे डाल दूँगा. और इंस्टाग्राम होगा या फेसबुक पे, टिकटॉक पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो इफ़ यू रियली नीड एनी हेल्प. ठीक है. और ऐसे बहुत सारे हैं, बट अभी इंडिया जाके आई होप आई एम फ्री, आई विल मेक मोर वीडियोस एंड आई विल कीप यू अपडेटेड कि कहाँ से मैं ये चीज़ सीखता हूँ या फिर कहाँ से ये चीज़ लेता हूँ. और अगर आपका कोई नॉन इंडिया में है जो कि शेफ़ है, जिसकी थोड़ी बहुत इंग्लिश अच्छी है और वो ऑस्ट्रेलिया में आना चाहते हैं, तो वो आ सकते हैं एज ए शेफ़. बट उनको स्किल असेसमेंट करना पड़ेगा 3 इयर्स का. तो वहाँ से भी वो टेस्ट पास करके ऑस्ट्रेलिया में ऑन वर्किंग वीज़ा आ सकते हैं, अगर दे हैव कैलिबर, दे हैव द नॉलेज, दे आर हैविंग जेन्युइन एक्सपीरियंस. और मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका मैंने रिसेंटली उनको तैयारी करवाई है, इंडिया के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के एंड नेपाल के स्टूडेंट थे, जिनका रिसेंटली टेस्ट हुआ है स्किल असेसमेंट, और वो पास हो गए. उनका टेस्ट रफली चला है 2.5 से 3 घंटे, और जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे सेशन में, वो सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनका रिजल्ट भी आ गया और दे ऑल पास. ठीक है. आई होप टू
शेयर दोज वीडियोज़ टू यू गाइस, मतलब मैंने रिकॉर्ड नहीं की बट आई विल डेफिनेटली रिकॉर्ड दोज वीडियोज़ फीडबैक के तौर पे, कि आप सबको पता लगे कि ना कि ऑस्ट्रेलिया में रह के जो आप स्टडी करके वो टेस्ट पास आप यहाँ पे कर रहे हो, बट जो स्टूडेंट्स इंडिया में रह के वहाँ पे पढ़ाई करके वहाँ पे काम करके वहाँ से बैठे बैठे थ्रू RPL अपना वैल्यूएट स्टडी करवा के दे आर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया ऑन वर्किंग वीज़ा, तो आपको कैसा फील होगा? आपने 5-6 साल यहाँ पे वेस्ट किया और वो लोग सीधे डायरेक्ट 4A2 पे यहाँ पे आ रहे हैं। सो दैट इज़ बिट ऑफ एक्सपीरियंस एंड उनका हार्ड वर्क कह लो आप, जो उन्होंने वहाँ पे बैक होम में किया है, राइट। अगर आपको फिर भी कोई हेल्प चाहिए, मैं अवेलेबल हूँ 24/7, इवन डजेंट मैटर वेयर एवर आई लिव, बट मैं अवेलेबल हूँ। आप सोशल मीडिया पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, आई विल बी हेल्पिंग यू आउट। एंड अगर कोई क्वेरीज हो तो आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट वीक इंडिया एंड आई विल बी कमिंग बैक इन February, right? So it is bit long, but yes, I will be keep updating you every social media. तो आप Instagram पे भी मैं अपडेट डालता रहता हूँ और टिकटॉक पे भी। टिकटॉक शायद ना चले, बट आप जितने भी देख रहे हो सोशल मीडिया पे जाके अपना इंस्टाग्राम सब्सक्राइब कर लो और यूट्यूब सब्सक्राइब कर लो, तो मोस्ट ऑफ द अपडेट्स वहीं पे आएंगी। और यूट्यूब पे तो कंटिन्यूसली वीडियो आ रही हैं, आप सब ने देखा भी होगा और आप देख भी रहे हो एंड यू आर गिविंग लव, सो रियली अप्रिशिएट दैट। एंड और भी बहुत सारे धमाके होने वाले हैं व्हेन आई गो इंडिया, बट वी विल अपडेट यू। मतलब बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं इंडिया में। जो आपकी कोई भाई बहन या फिर कोई अंकल आंट कोई भी ऑस्ट्रेलिया आना चाहता है किसी भी ट्रेड पे, तो दैट इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू कम। अगर उनके पास जेन्युइन एक्सपीरियंस है और थोड़ी बहुत वो इंग्लिश बोल लेते हैं, तो उनके लिए बेहतरीन मौका हो सकता है। आप टच में रहिएगा, कोई भी क्वेश्चन होगा मैं उसकी 100% आपको क्लियर एंड ऑथेंटिक जानकारी दूंगा कि कैसे और किस तरीके से होगा। और जिन लोगों को PDF चाहिए, जिन लोगों को सेशन चाहिए, PDF चाहिए, पैकेज चाहिए, कुछ भी ऐसा है, कंसल्टेशन चाहिए, वो मेरे को टिकटॉक पे मैसेज कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और आई विल लीव माय नंबर इन द बायो, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो और हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। और PDF का भी ये है, उसकी भी बहुत अच्छी फीडबैक है। जो भी PDF आप पढ़ते हो, मतलब जो मैं आपको PDF प्रोवाइड करवाऊँगा वो कहीं से भी कॉपी नहीं है, किसी के साथ से भी किसी भी की क्वेश्चन नहीं उठाया, वो सिर्फ मेरी नॉलेज है। मैंने जो अपने आंसर्स अपने अकॉर्डिंग अकोमोडेट किए हैं उसके अंदर। सो बेसिक नॉलेज है, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे टेस्ट में वो सारे क्वेश्चन उसके अंदर हैं। कोई मेरे से पूछता है क्वेश्चन कितने हैं, मैंने कभी काउंट ही नहीं किए क्वेश्चन कितने हैं, बट मेरे को ये पता है कि दैट इज़ 75 पेजेस PDF, जहाँ पे सारे क्वेश्चंस मैंने किए हुए हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा कि जो बाहर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, आपको PDF चाहिए, अगर आपको सेशन चाहिए, अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए, या फिर अगर आपने किसी को बुलाना है या किसी का कुछ करवाना है इंडिया से भी, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हो। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, कहाँ से भी अगर कोई बंदा स्किल्ड है, ऑस्ट्रेलिया ट्रेड लिस्ट में वो है, तो वो कहीं से भी किसी कॉर्नर से भी यहाँ पर आ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो अभी ऑस्ट्रेलिया में बोलबाला है 4A2 का, 491 का, 186 का, 190 का, 189 का, तो ये सब हैं। अगर आपका कोई जानकार या कोई रिश्तेदार अगर ये चीज़ें ढूंढ रहा है तो यू कैन गेट इन टच विद मी, ठीक है। किसी का ओके एज लिमिट नहीं है, ठीक है। अगर आप ओवरसीज से एप्लीकेशन करते हो तो 45 से ऊपर आप सीधी PR डाल के आ सकते हो ऑस्ट्रेलिया में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज यू हैव ऑल द रेलेवेंट एजुकेशन, राइट। सो दैट्स बेस्ट अपॉर्चुनिटी। जितने पैसे आपने यहाँ पे स्टूडेंट वीज़े पे आके लगाए हैं, उससे उतने पैसों में से बंदा इंडिया कहीं से भी ऑस्ट्रेलिया में वर्किंग वीज़े पे आ सकता है, एंड इट इज़ पॉसिबिलिटी, ठीक है। अगर आपको लगे कि नहीं मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो मैं आपसे वो बंदे भी मिलाऊंगा जो इंडिया से। हमारे खुद के रेस्टोरेंट में अभी एक रिसेंट शेफ़ आया, ही इज़ जस्ट 23, आप बिलीव करते हो? 3 साल का उसके पास एक्सपीरियंस है, ही इज़ जस्ट 23 एंड ही केम ऑन 482 वीज़ा। सिर्फ 23 साल का बंदा जिसने वहाँ पे अपनी HM किया, एक्सपीरियंस लिया,
और उसने टेस्ट पास किया JRP का स्किल असेसमेंट वाला, हमने उसको तैयारी करवाई, आज वो हमारे रेस्टोरेंट में काम कर रहा है। सो दिस इज़ वेरी गुड वे, बट हमें पता नहीं है ये चीज़ें, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है, हमें सिर्फ। और दूसरी ये बात है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आना चाहते हो तो टूरिस्ट वीज़ा इज़ वेरी वेरी हार्ड टू गेट इट नाउ डेज। द रीज़न इज़ ऑल द ट्रेड कोर्सेज इफ़ यू अप्लाई फॉर 101% यू विल बी रिजेक्टेड। ये मतलब मैंने पढ़ी जो न्यूज़ है उसके बाद पे बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट एजेंट, बट मैं ये बता रहा हूँ कि फैक्ट क्या है। और अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो और आपका स्कोर अच्छा है, 80 से ऊपर है, आपके 7 में आइल्स में है और आपकी अच्छी प्रॉफिट वहाँ पे ज़मीन जायदाद है, तो अगर आप चाहते हैं स्टूडेंट वीज़ा आने पे तो यू आर मोस्ट वेलकम। यूनिवर्सिटी की फ़ीस अराउंड $40,000 to $150,000 के आसपास में है। दैट इज़ बिट हार्ड, ठीक है। उतना भरने से अच्छा है तो आप तो 1 साल या 2 साल वेट करके आ जाओ ऑस्ट्रेलिया, और राइट डिसीजन होगा वो, और आते ही आप पैसे कमाने स्टार्ट कर दोगे। यस आप सर्टिफिकेट 4 के बाद में कर सकते हो JRP, बट आप पार्ट टाइम कर सकते हो, कैजुअल कर सकते हो, बट आप फुल टाइम नहीं कर सकते। फुल टाइम आप तभी कर सकते हो जब आप TR पे हो जाओगे, ठीक है। रंधावा जी तुम मैंने मैसेज कर लो टिकटॉक पे, तो मैं तुम्हें PDF भेज दूंगा, या मैं तुम्हें WhatsApp का नंबर सेंड कर दूंगा, तुम मैंने उत्ते मैसेज कर लो एंड वी विल सेंड यू द PDF, ठीक है। सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हैगा तो तुम पूछ सकते हो। नहीं नहीं जी, मैं बेस्ड हैगा वा मेलबर्न, राइट। आई एम बेस्ड इन मेलबर्न सिंस आई एम इन ऑस्ट्रेलिया, और हमारे पे कहीं पे भी कोई ऑफिस नहीं है कोई भी ऑफिस नहीं है, सिर्फ एक ही है हमारा सोशल मीडिया, जो कि हम फेसबुक पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं, टिकटॉक पे भी हैं, ट्विटर पे भी हैं, लिंक्डइन पे भी हैं, एंड और क्या स्नैपचैट पे भी हैं, और कौन से हैं, बस टोटल मिला के सब पे हैं। तो आप और यूट्यूब पे भी हैं। ब्रो व्हाट हैपन इनरोल्ड नर्स एनी चांस ऑफ परमानेंट? हाँ जी देखो, फिर वही गल, मैं एजेंट बन गया नहीं, मतलब मैं आंसर करना नहीं चाहता, बट आई स्टिल टेल यू कि क्रिटिकल जो सेक्टर है ना, जो क्रिटिकल सेक्टर है, अभी अगर आपको पता है कि क्रिटिकल सेक्टर कौन से हैं, जो हॉस्पिटल है ना, और हॉस्पिटल के रिगार्डिंग जितनी भी जॉब है वो सब क्रिटिकल सेक्टर वाले। टेलीग्राम पे भी हूँ मैं, पर मैंने इस पर कोई अपना बनाया नहीं है ग्रुप टेलीग्राम पे। आई एम ऑल्सो ऑन टेलीग्राम, बट आई यूजली डोंट यूज़ दैट, क्योंकि व्हाट्सएप टेलीग्राम प्रीटी मच सेम है, ठीक है। सो व्हाट्सएप पे हमने चैनल बना रखा है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो, बट मैं उसका लिंक डालूंगा, आप उसको फॉलो कर लेना, और वहाँ पे जो भी किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वी विल डेफिनेटली यूज़ दैट फॉर एनी अपडेट। सो यस नर्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप कर सकते हो 101%, क्योंकि ये क्रिटिकल सेक्टर है, ये कहीं पे भी जाने वाला नहीं है, बेहिचक आप करें। ओके टिकटॉक की बायो में मैं लिंक लगाऊंगा, अगर लग गया तो, नहीं तो आई एम जस्ट थिंकिंग टू पोस्ट माय नंबर, बट मेरे को उसमें बहुत डर लग रहा है कि मैं नंबर नहीं देना चाहता, क्योंकि नंबर आने के बाद हम डायरेक्टली कॉल करते हैं, मैसेज नहीं करते, राइट। सो आई एम जस्ट थिंकिंग टू जस्ट पुट व्हाट्सएप, और या फिर मैं इंडिया जाके अपना इंडिया वाला व्हाट्सएप डालूंगा वहाँ पे, तो दैट विल बी बिट ईजी। लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। हाँ जी होर किसी का कोई क्वेश्चन हैगा पूछ सकते हो। हाँ ओके, एक होर क्वेश्चन, अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥਰੂ RPL ਇੱਕ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪ੍ਰਾਇਰ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥਰੂ ਯੋਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਟੂ ਲੀਡ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪਾਥਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼
actually a right way to gain the experience and to claim the experience on a study base. ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਡਰ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆ ਗਏ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੈਲਡਰ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥਰੂ RPL ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਦੀ ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੇ, ਬਟ ਸਟਿਲ ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, इनू तुसी फर्दर डिस्कशन के लिए मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बट उस तो पहले आप एजेंट नाल भी गल कर सकते हो तुसी, राइट जी। हाँ जी, एनी मोर क्वेश्चन वी हैव वुड लव टू आंसर। Any question? Okay. No? ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਲਾਈਵ ਤੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਵ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਣ ਕੇ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਆ ਥਾਟਸ। ਓਕੇ, ਫਰਾਇਰ ਦਾ ਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਰੋਬੋਕੂਪ ਦਾ ਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਵਟ ਇਜ਼ ਰੋਬੋਕੂਪ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? हाँ जी, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹਾਊ ਟੂ ਅਸੈਂਬਲ, YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਜਤਿਨ ਜੇ ਕੇ, ਹੈਲੋ ਜਤਿਨ, ਹੈਲੋ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? ਓਕੇ, ਰੋਬੋਕੂਪ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੇਫਟੀ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਬਲਿੰਗ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਯੂ ਡੂ ਵਟ ਐਵਰ ਇਜ਼ ਵਾਂਟ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ YouTube 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਊ ਵੁਡ ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਕਿ ਰੋਬੋਕੂਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਤੇ ਜਸਟ ਵਾਚ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ ਰੋਬੋਕੂਪ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਦੈਨ ਇਟਸ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਫਾਈਨ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। हाँ जी, वैसटर्न फूड चो तो जे हैगा वा दैन यू शुड नो जी। जी, एनी मोर क्वेश्चन?